तो इसे हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. लेट अस रिवाइज इज. सो वी आर लुकिंग टुवर्ड्स रियल नंबर सिस्टम. In earlier classes, we have studied about rational number, okay, and in this topic, and also in earlier classes, we have studied about irrational number. So, rational number by definition, p by q not equal to 0 are called as rational number. In maths, q can never be equal to 0. Such a condition is the undefined. Please remember this. Whenever you get denominator 0, just stop. Something is wrong or something is like not defined. Denominator should never be 0. Irrational numbers, best example are, you take roots of prime number, you get irrational number. Okay, so note that pi equal to 22 by 7 is looks like a rational number in the form of p by q, but this is just for convenience. It is not the actual value. Further, rational numbers, this if this q is 1, that is denominator is 1, which is by default for any number, like we can write this by 1, this by 1, so we call them as integers. Okay, and if there are fraction and we cannot like simplify it, or it is not multiple or divisible, so we call them as fractional. So these are integer part, this is fractional part. Integer consists of negative number, 0 and positive number. So again, integer can be divided into positive and negative number. In positive, we know natural numbers starting from 1 to infinity, and if we add 0 to the natural number, 0 plus 1 to infinity, we get whole number. So this is the classification of number system. If you get root of, these are called as complex number, which you required in higher classes. So in 10th standard, the topic begins with Euclid division lemma. This looks like very complicated thing, but do not worry about it. We have already studied it. Just this is the new name, lemma, which means that something which is a proven statement, and we use it to prove another statement. I personally like to teach, and you should also study maths in this form, which we have also seen in slide number 1. Okay, using words, variable, number and diagram, so that every concept gets clear crystal. Okay, so Euclid division lemma also we tried to express in this form. This is the word statement that we have to do something, then using some diagrams we applied that 7 chocolates, 3 in a box, so 3 will come in first box, next 4 remaining 3 will come in next box, and 1 will remain. Okay, so this is very similar scenario, and we have been doing it in divisions. Okay, just we have given it, this is in word form, this is in diagram form, this is in number system form, same thing represented in 3 form. So 3 7 goes 2 times and we get remainder 1. We write it in famous pattern, that dividend equal to divisor into quotient plus remainder. So here 7 equal to 3 into 2 plus 1. For our better understanding, we have taken one more example, this time 9 chocolate and 2 times 2 in a box, so it goes 4 times and we get 1 remainder after having 8. So this can also be represented as 9 equal to 2 into 4 plus 1. I hope you get exactly what Euclid division lemma is in this slide. So let us move ahead. हेलो स्टूडेंट्स, मैं राज किरंगाले, आपका मैथ्स एंड साइंस कोच फ्रॉम स्टूडेंट फर्स्ट लर्निंग सेंटर हिंगनघाट। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को प्लीज़ 480 पिक्सल यूट्यूब क्वालिटी में सेट कर ले और डिस्क्रिप्शन में दिए नोट्स को डाउनलोड कर ले। तो कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन। जो भी हमने नंबर्स लेते हैं, जैसे 9 चॉकलेट या 7 चॉकलेट को, अभी नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे वेरिएबल फॉर्म में। ठीक है, पहले वर्ड में देखा, फिर डायग्राम और नंबर में देखा, अब उसको वेरिएबल से रिप्लेस करते हैं तो हमें एक्चुअली यूक्लिड डिवीजन लेमा मिल जाता है। तो हम जो डिविडेंट है उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, डिवाइजर को बी से, क्वोशंट को क्यू और रिमाइंडर को आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा जो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर है, वो अभी वेरिएबल सिस्टम में कुछ इस तरह दिखेगा। रिमाइंडर हमेशा 0 हो सकता है, ओके, या इस बी से लेस है। 0 हमेशा 0 हो
रिमाइंडर हमें पता है, हम इतना जब भी हम डिवीजन करते थे उसका आंसर एक तो 0 हो सकता है या इस b से जो ये डिवाइजर है उससे हमेशा लेस रहेगा। आगे एग्जांपल्स में हम इसकी पुष्टि कर लेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा रिप्रेजेंट करना है तो वो कुछ इस प्रकार होगा। गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, राइट, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, वी कॉल इट क्वोशंट q, एंड r, that is remainder, where it satisfies this given equation and r is less than, and r is, it can be equal to 0 or less than b. So this is statement for Euclid division lemma, and this is its expression, mathematical expression. This is nothing new. ये बिल्कुल भी नई चीज़ नहीं है, ये हम करते आए हैं, बस एक नाम दे दिया गया है। जैसे कि ये एग्जांपल है, 16 को 3 से डिवाइड किया तो 5 टाइम्स आएगा, 5 3 ज़ा 15 एंड 1 विल बी रिमाइंडर। तो इसी डिवीजन को अब अगर यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के स्टाइल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 16, ठीक है, इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 1, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट, रिमाइंडर। ठीक है, लाइक दिस इन द वेरिएबल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। हम इसको कुछ एग्जाम्पल लेके थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि 7 को 2 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन आएगा 3, रिमाइंडर आएगा 1। 14 को 6 से डिवाइड किया तो 6 2 ज़ा 12 आएगा और प्लस 2 रिम। 17 को 6 से 3 करेंगे तो 18 आएगा, सो 2 टाइम्स करेंगे 12 आएगा प्लस 5 रिमाइंडर आएगा। 5 को 12 से, ठीक है, 5 को डिवाइड करना है 12 से तो 0 ही लेना पड़ेगा क्योंकि 12 बिगर नंबर है, तो 12 0 ज़ा 0 और ये रिमाइंडर में आ जाएगा सीधा 5। ओके, सो ये एग्जांपल को भी क्लियरली नोट कीजिए। 20 को 4 से डायरेक्टली कंप्लीटली डिविज है, 4 5 ज़ा और रिमाइंडर 0 आएगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये रिमाइंडर के कॉलम को तो रिमाइंडर की वैल्यू की देखो 0 हो सकती है, और ये देखोगे तो ये हमेशा b से लेस है, मतलब डिवाइजर से हमेशा लेस है। इसलिए हम इसके स्टेटमेंट में लिखते हैं कि r कैन गो फ्रॉम 0 टू लेस देन b। ओके, तो यहाँ से हमें क्लियर कट एक्सप्लेनेशन मिल जाता है इस पॉइंट का, राइट। नेक्स्ट कंसेप्ट है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एक ही चीज़ है, बस एल्गोरिदम वर्ड ऐड कर दिया है। तो ये एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम वेल डिफाइंड स्टेप्स को या वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स को हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की वेल डिफाइंड स्टेप्स को अगर हम अप्लाई करें तो हमें उसके कुछ अप्लीकेशंस मिलते हैं, उसके कुछ यूजेस मिलते हैं जिसके कारण हमने उसे सीखा है। तो क्या एप्लीकेशंस और क्या यूजेस है? फर्स्ट है कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर को फाइंड करने में हमारी हेल्प करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में या मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में आपने पढ़ा होगा कि इवन नंबर को रिप्रेजेंट करना है इन जनरल फॉर्म तो उसे हम 2n या 2n वेयर n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर या इंटीजर या 2q के फॉर्म में लिखते हैं। मल्टीपल ऑफ 2 आर इवन नंबर, और इवन नंबर में एक नंबर ऐड कर दे तो हमें ऑड नंबर सिस्टम या ऑड इंटीजर सिस्टम मिलता है। जैसे कि 2q प्लस 1 ऐड करके तो 2q के बाद 4q भी हो सकता है, तो 4q का प्लस 1 ऐड कर सकते हैं या 3 भी ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें ये पता है, लेकिन ये फाइंड करने के लिए हमें या प्रूव करने के लिए हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का मदद लेनी है या यूज़ करना है। और एक इसका यूज़ है कि ये HCF ऑफ बिगर नंबर फाइंड करने में हमारी मदद करता है। इसके पहले हमने HCF और LCM प्रीवियस क्लासेस में फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किए, लेकिन अगर बिगर नंबर है तो फैक्टराइजेशन मेथड का भी ट्रिकी और लेंदी हो जाती है। ऐसे में हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड HCF ऑफ बिगर नंबर। ठीक है, तो ये दो एप्लीकेशन है और नेक्स्ट पार्ट में हमें इन दो एप्लीकेशन के बारे में ही न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना है। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस चीज़ को। सो इन आवर अर्लियर क्लासेस वी रिप्रेजेंट यूक्लिड डिवीजन लेमा इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स, जिसके 9 चॉकलेट 3 चॉकलेट। Then we have considered the diagrammatic explanation using the division that we have been doing. We got it in number system. Now we are replacing it by variable, that is we study maths in fourth form is variable. So we represent
dividend by A, divisor by B, quotient by Q, and remainder by R. And thus we can write that dividend is equals to divisor into quotient plus remainder in this form, where this remainder R, it goes from 0 to less than B, and this is nothing but Euclid division lemma. If I have to express the same thing in statement form, this is the statement form of Euclid division lemma. Okay, A and given two integers, these are the two integers which are always given to us, and we can then express it in this form. Okay, this is nothing new. Of course, we have been doing it since 5th or earlier classes, and we know this division. Just we have to represent this in now Euclid division lemma, and we have been doing this also. So we took various example and tried to divide it with some numbers, and we get quotient column and remainder. We analyze this remainder column, and we always find that it can be 0 or it will be always less than the B, that is divisor, and hence we write that R goes from 0 to 0 or less than B. Okay, then further we move on to Euclid division algorithm. This is nothing but Euclid division lemma application. Algorithm means well-defined steps and procedure. If you do that, this can be used. So what are its application? First, it is used to find the properties of number. We know that in earlier classes we have seen even numbers can be represented as 2n, multiple of 2, 4, 6. So multiple of 2 are even number, and if you add 1 or 3 to the same, like if you add 1 to 2, we get 3. Okay, or if you add 3 to 2, we get 5, which are example of odd integer. But to prove this, we know that is represented in this form. To prove this, we can use Euclid division lemma. It is also used to find HCF of spatially bigger number. Smaller number, we have been finding HCF using factorization method or prime factorization method. In this class, we will also see how to find HCF using the Euclid division lemma. Okay, so let us move to the प्रॉब्लम्स ऑफ दिस, स्पेशली एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स. तो बढ़ते हैं अब एग्जाम्पल की तरफ. एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर नंबर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1. अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम देखे थे, और उसी एप्लीकेशन पर बस ये क्वेश्चन है. इवन नंबर 2q के फॉर्म में होता है और ऑड पॉजिटिव इंटीजर 2q + 1 के फॉर्म में होता है, ये प्रूव करना है. तो सबसे पहले हम यूक्लिड डिवीजन में क्या होता है, a, b, q और r, हमें ये लेके आगे बढ़ना है. तो एक a करके एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं और b की वैल्यू 2 लेते हैं. अब b की वैल्यू इसलिए 2 ली कि क्योंकि यहाँ पे हमें 2q, q के साथ हमेशा क्या होता है यूक्लिड डिवीजन में, a = b × q. तो q की वैल्यू यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2q + 1, bq + 1. तो b की वैल्यू हमें 2 लेना है, ये हमें क्वेश्चन में से हिंट मिला है. सो a ले लिया, b ले लिया. अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, a = b × q + r, और b की वैल्यू हो गई 2, and r we know it goes from 0 to less than b is 2, right? तो ये दो स्टेप हमेशा स्टार्टिंग में इन टाइप के प्रॉब्लम में लिखना है, और अभी इसमें से अपने आप आगे प्रॉब्लम ट्रैवल होता है कुछ इस तरह. जैसे अभी r की वैल्यू हो सकती है 0 से 2 से लेस. सो क्या क्या सिनारियो आएंगे, r एक तो 0 रह सकता है या r एक तो 1 रह सकता है. ओके, सो केस 1 ले लेते हैं हम, जब r की वैल्यू 0. अब इस इक्वेशन में अगर r की वैल्यू 0 डालेंगे तो a = 2q + 0 हो जाएगा, दैट इज a = 2q. ठीक है, अब रिमाइंडर हो गया 0, रिमाइंडर 0 हो गया. इसका मतलब ये है कि जो a है वो 2 से कम्प्लीटली डिविजल है, और बाय द डेफिनेशन ऑफ इवन इंटीजर अगर कोई भी नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है तो हम उसे इवन नंबर कहते हैं. इसलिए a = 2q वो इवन इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है. करेक्ट, वेरी सिंपल. ओके,
केस नंबर 1। तो बढ़ते हैं अभी केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 में आर की वैल्यू है 1, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ए इक्वल टू 2q, जो यूक्लिड डिवीजन इक्वेशन हमने लिखा है वो किस तरह से हो जाएगा, ए इक्वल टू 2q प्लस 1, यहाँ पे प्लस 0 था, यहाँ पे प्लस 1 आ गया है, ठीक है। तो इसका क्लियर कट मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 नहीं है, मतलब ए जो है, जो डिविडेंड है वो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। और ऑड नंबर की तो डेफिनेशन ही ये है कि अगर कोई भी नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है तो हम उसे ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। फर्दर यहाँ पे 1 है, और जैसे इवन नंबर में 1 ऐड करो तो हमें हमेशा ऑड नंबर मिलते हैं, ओके। सो ये टाइप के प्रॉब्लम, जैसे एप्लीकेशन नंबर 1 के जो प्रॉब्लम है उसमें हमें पहले ए और बी की वैल्यू सिलेक्ट कर लेना है क्वेश्चन से, फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है, कुछ केसेस मिलेंगे, उन केसेस के हेल्प के कारण हमें जो प्रूव करना है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। सेम पैटर्न हर क्वेश्चन में है। एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। यहाँ पे हमें दिखाना है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सब इंटीजर। ऑड पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पूछा गया है। तो अगेन वी विल डू द सेम स्टेप। यहाँ पे 4q प्लस 1 है, फॉर्मूले के हिसाब से यूक्लिड के b इंटू क्यू प्लस आर। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे b की वैल्यू भी है और कहीं ना कहीं r की भी कुछ वैल्यूज दी है। तो हम सेम स्टेप्स लेते हैं जैसे कि प्रीवियस प्रॉब्लम में ली थी। a ले लेते हैं और b की वैल्यू लेते हैं 4, जो कि हमें क्वेश्चन से मिली। यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं, a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर। सो b की वैल्यू है 4, r गोज फ्रॉम 0 टू लेस देन b, सो r गोज फ्रॉम 0 टू लेस देन 4। सो अभी कौन कौन से केसेस मिलेंगे, यहाँ पे r की वैल्यू रह सकती है 0, 1, 2 और 3, ओके। अभी यहाँ पे इन केसेस में दो केसेस अपने आप कैंसिल होती है। कौन कौन सी दो केसेस, 0, r इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 2 हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, ऑलरेडी दिया है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। जब क्वेश्चन में ऑड इंटीजर दिया है, यहाँ पे हमें प्रूव करना था प्रीवियस प्रॉब्लम में, लेकिन यहाँ पे ऑड इंटीजर दिया है। ऑड होता है नंबर तो रिमाइंडर कभी भी उसका 0 या 2 नहीं हो सकता है, ठीक है। सो इट कैनॉट बी 0, 0 मतलब 4q प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 4q वाली केस इग्नोर करेंगे और 4q प्लस 2 वाली केस इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये इवन इंटीजर है, ऑड नहीं है और हमें सिर्फ ऑड लेना है। तो रिमेनिंग कौन सी केसेस रही, r इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 3। सो ये एक हल्का सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में कि हमें कौन कौन सी केसेस इग्नोर करनी है और कौन कौन सी केसेस कंसिडर करनी है। तो जब r 1 हो जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगा 4q प्लस 1, और जब r 3 हो जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगा a इक्वल टू 4q प्लस 3, और वही हमें प्रूव करना था, 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3, एंड इसी प्रकार हम प्रूव। तो इट्स वेरी सिंपल ये स्टेप के प्रॉब्लम, ओके। let us get it revised. So the question number 1 is on the application of Euclid division lemma, that is first application, where we have to prove that given number, even number is like this and odd number are like this. Usually there are fixed steps, okay, and if we do first 1 or 2 step, rest of the step follows. So what we do, we take a and we select the value of b from the question, okay, b into q plus r, this is the structure. Then we write Euclid division lemma as, okay, up to this, and then we get the scenarios for r. Using this scenario of r, we proceed our answer. We consider the first scenario where r is 0, so we get 2q, remainder is 0 and it is multiple of 2. This is sufficient to tell us that this is even number. So thus even number is represented by a equal to 2q. So our first part of the question gets solved. We go to the next
case, that is r equal to 1. We rewrite this Euclid division lemma 2q plus 1. Okay. Again, now the remainder is not 0. What we have to prove and what we have is we have to connect. Remainder is not 0. Definitely it is not even number, and since it is not divisible by 2, we know that this is the definition of odd number. Again, remainder is 1 and it is not divisible by q. So we say that a equal to 2q plus 1 is a representation of odd integer. We then proceed to same type of question. Just the difference is here it is 4 and here we have given odd integer. As a result of we take 4 here and we get 4 cases here. However, the 4 cases, out of the 4 cases, we automatically 2 cases get cancelled because it is already given it's a odd integer. So we take the remaining 2 cases, that is r equal to 1 and r equal to 3. So when r equal to 1 and when r equal to 3, and that is what we automatically get our equations that we have to prove. Okay. So I hope you get this style of this question. Okay. आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। आई होप इससे आपको मदद होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड एंजॉय स्टडिंग।